Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Today in class 10, again welcomes everyone to in our fourth unit is going on. So unit number 4, this is a quadratic equation, and we already started in the last lecture. So today we have to discuss about that. The first question is that already we discussed 4.1 first question. Now we are going on to the question number 2. Now this question number 2 is suggesting us that it's given the represent the following situations into the quadratic equation. आपको क्या करना है, quadratic equations इसी situations को represent करके आपको एक quadratic equation बनाना है. तो quadratic equation किस situation से आप बना सकते हो, that we have to learn from this question number 2. So first thing is that once you have to using this, that time you must be clear about which things is given in this question. Okay, so it is a descriptive type of question, so 2, 3, 4, 5 times you have to read first, and then after you have to implement. So here that some of the situation is given here, and this situation is suggesting us that which kinds of the situation is given, that we have to added here. First one is the area of a rectangle, rectangular plot. I am talking about the question number 2, first Roman. Exercise 4.1 की मैं बात कर रहा हूँ. So be careful about that, and you can also open your textbook. So you can also simultaneously thoroughly what I am telling in the front of you. You can also simultaneously check that whether this question is going on or not, isn't it? So question number 1, question number 2 का first Roman, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. So we need to find the length and breadth of the plot. So here the represent the following situations in the form of quadratic equation. जो भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है उस कंडीशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनाएंगे. अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हमें गिवन है, कितना है 528. तो एरिया दैट इज वन रेक्टेंगुलर एरिया, दिस इज वन प्लॉट. This area is considered as a 528 meters square. This is the length and this is the breadth. So we know that any rectangular part, if we find out the area of a rectangle, then we have to use one unique formula, that is rectangle area of rectangle is equal to length into breadth. तो हमें इसमें से सिर्फ क्या चीज गिवन है, एरिया गिवन है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमें फाइंड करनी. तो इस कंडीशंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक ही चीज हमें बताई गई है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो हमें किसको एज्यूम करना पड़ेगा, लेंथ है वो 2 टाइम ब्रेथ से एक ज्यादा, मतलब 2 टाइम ब्रेथ से एक ज्यादा कौन है, लेंथ है. तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1, ऐसा एक कंडीशन हमारे पास हो सकता है. बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एज्यूम दैट वी कांट नोइंग अबाउट द ब्रेथ ऑल्सो. तो फर्स्ट वी हैव टू चूज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. लेट अस एज्यूम दैट फर्स्ट ब्रेथ कंसिडर करो कि ब्रेथ इज इक्वल टू x. हम ऐसा मान लेते हैं और ऐसा हम आगे बढ़ते हैं. तो कैसे करेंगे हम, the area of rectangular is given 528 meters square, that is given here, and this is the one shape of rectangular part. Now let the breadth is equal to x meter. हमने assume कर लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं L है नहीं breadth है, length भी नहीं है और breadth भी नहीं है. Then we have to using that, first we have to assume that let breadth is equal to x meter. हमारे पास breadth है वो x meter है, सब मान लो. तो उस कंडीशन के हिसाब से अभी मैंने बोला आपको कि इस कंडीशन में आप आगे बढ़ो तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ
एंड वन मोर, मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि 2 टाइम्स ब्रेथ से एक ज्यादा है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग्स इज गिवन 2 ब्रेथ प्लस 1. So obviously we have to make that length is equal to 2 breath plus 1. So this is a twice breath, one more with the length. So we can using that length is equal to x. हमारे लिए breath क्या है अभी x है, that's why 2x plus 1 meter. Now we all know that the rectangular plots का area मतलब area of rectangle is equal to length into breadth. So length into breadth is equal to, हम सीधा सा वही इक्वेशन यहाँ पे रख देते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है हमने अभी फाइंड किया 2x plus 1. दैट वे वी हैव टू यूज फॉर द लेंथ 2x plus 1 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास x है. सो वी हैव टू डायरेक्टली यूज हियर x. सो ऐसे कंडीशंस को हम यूज कर लेते हैं. 2x plus 1 into x इज इक्वल टू 528. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 528. तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 को इस साइड ले लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. अब आप इसको कंपेयर करो. Is this a quadratic equation? Obviously yes, because of ax square plus bx plus c से considered होता है. So obviously we can say that it's a quadratic equation. तो हमें एक condition दी थी, हमें एक situation दी थी. उसी situations का हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. तो ये चीज इस क्वेश्चंस में करनी है. समझ में आ गई? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. सभी ये मैंने एक ही एक्सप्लेन किया है और दूसरे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देन यू हैव टू यूज दिस क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस थिंग्स thoroughly and then after we will discuss into the next sums. Okay, so take your time for that. Okay, so let us move on to the question number 2 के सेकंड रोमन की मैं बात कर रहा हूँ. ये सभी सिचुएशन बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो. बट आई ऑल्सो यूज दिस थिंग्स इन द फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ समटाइम्स वी हैव टू कलेक्टिव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स अ डिस्क्रिप्टिव. दैट्स व्हाई यू हैव टू मोर फोकस्ड ऑन इट. ओके, so let us move on this question number 2. Second Roman is suggesting itself also be very easy. The question is suggest that the product of two consecutive integers, the product of two consecutive integers is 306. Now we need to find the integers. हमें क्या करना है? Integers find करना है. But the condition is given that the product of two consecutive integers. अब हमें ऐसा पता चल रहा है कि सपोज हम मान लें कि हमारे पास इंटीजर क्या है पता नहीं, तो वी हैव टू एज्यूम दैट लेट अस द फर्स्ट नंबर इज x. तो ऑब्वियसली टू कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात करें तो जैसे कि 1 है तो 1 में हम क्या ऐड करते हैं तो 2 आता है. 1 प्लस 1 यानी 2 आता है. वैसे सिमिलर वे से हम कंसीडर करें तो सपोज वी हैव टू एज्यूम दैट फर्स्ट इज x. तो ऑब्वियसली सेकंड वन नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा. ये टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गया ना, बिकॉज ऑफ वी कांट नो अबाउट विच इंटीजर्स नंबर इज गिवन. सो दैट टाइम वी हैव टू फॉलो दैट x. सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इसमें एक ऐड कर दे, x प्लस 1 हो गया. तो ये 2 कंसेक्यूटिव हो गया. यदि ये 3 कंसेक्यूटिव कहा होता तो ये होता x प्लस 2. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, दिस इज अ कंसेक्यूटिव, मतलब 1 के बाद एक नंबर जो होता है उसको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं. सो फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज x प्लस 1, थर्ड यदि बोला गया तो x प्लस 2, यदि फोर्थ कंसेक्यूटिव नंबर ऐसा बोला देन x प्लस 3, सो ऑन. ओके, बट वी नीड नॉट हियर
x plus 2. So we have to using x and x plus 1. अब यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें ऐसा बताया गया है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का इंटीजर्स का प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ ना x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है, यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है वो 306. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी थिंग्स. यहाँ पे आप देख सकते हो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306. इसको हम कंसिडर करें, 306 को इधर लाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कंप्लीट. कितने स्टेप्स किए मैंने? 3. याद क्या रहना था, यदि आपको ये पता नहीं चलता कि कंसेक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते तो ही दिक्कत आती है. समझ में आ गया? सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग्स एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस. सो द रिमेन्स पोर्शंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 and 4th रोमन होमवर्क में आज आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर कंसेप्ट्स. अब हम आगे के कंसेप्ट की ओर चलते हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद इस साल कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें भी कितने सारे पॉइंट्स में कट हो सकता है. कट हो सकता है मतलब syllabus point of view, it will be not asked into the examinations due to this COVID-19 that is going on. So whatever the things is cut from your particular topics, that topic I am not mentioned into these chapters also. But laterally, whenever we get the time, we all discuss all the points. But till we have to focus only those points that will be asked into the examinations. Okay, so there is nothing too hard inside these questions, but most probably some of the portion is cut from this chapter also. Almost in mathematics, total 15 chapters are there. All 15 chapters having a number of things is cut up to the 30%. 30% syllabus that will be reducing from your better performance for the given of the boards. So that is also good steps by the government, but we can also be focused on that. Whatever the things we have to focus more in this, then we have to get the concrete solutions, because of if we have only 70%, then we can get more marks rather than the 100% is there. So we think positive and we go fast on it, isn't it? So let us move on to the another points. So let us move on to the next concept that is related with the solution of a quadratic equation by factorization. Now, how can we find out the solution? Quadratic equation का solution हमें factorization से कैसे find करना है? मतलब solution with using of factorization method here. So this is a very easy thing because we already studied this factorization into the polynomials chapter also. So we all know that. And what is the similarity of here in the polynomials, zeros of the polynomials, and now we are going for the roots of quadratic equations. Both have the equal things. Whatever we studied out into the polynomials and quadratic equation, both are equal. There is nothing to difference between these two. But on that time we discussed about the zeros of the polynomials, so we have to find out at least 2 zeros. Similar way we have to using word roots in this quadratic equation. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? वहां हम zeros of polynomials ऐसा बोलते थे, यहाँ पे हम बोलेंगे roots of quadratic equation. अब ये दोनों चीज है इक्वल ही. जैसे कि मैं आपको बता दूं
कि सपोज यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो वहां पे भी हमने पोलिनोमियल्स में देखा था कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप देखोगे, सपोज हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक x है यहाँ पे, उसकी जगह पे हम अल्फा यूज करते हैं। अल्फा मतलब रूट हम यूज करते हैं, तो एक्चुअल में a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, वी पुट द अल्फा इन प्लेस ऑफ x, so we can say that this alpha is a one kind of the root, where on that time we can say that the zeros of the quadratic equation. So here alpha is a one kind of the root. So this is particular things we have to use in a alpha square b alpha plus c. Similar way we are using it to the polynomials part, that is considered as a roots. So both things we have to using here because of both things are equal, like zeros of the quadratic polynomials and roots of the quadratic equation, both are the similar. In the polynomials we discussed about the zeros of the polynomials, quadratic polynomials. Similar way we are using here the roots of quadratic equation, so nothing to hard inside. And we all know that how to factorize, क्योंकि वो भी हमने पोलिनोमियल्स में सीखा था कि फैक्टराइज कैसे करना है। तो ये चीज यहाँ हम फिर से यूज कर रहे हैं। उसमें वी हैव व्हाटएवर वी फाइंड आउट दैट इज कंसीडर्ड एज ए रूट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो दैट वे वी हैव टू स्टार्ट इट। Okay, so let us move on to the first examples over here, and then first we have to use it. Okay, so let us move on to the first example. So we have to start the first examples related with the roots, find out the roots of the quadratic equation. Okay, so first example is suggesting that find the root of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization. ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसा ही होगा कि एक इक्वेशन दिया गया और इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन से उसके रूट फाइंड करो। हम पोलिनोमियल्स में उसके जीरोस फाइंड करते थे, यहाँ पे हम उसी चीज का सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द रूट्स। वही चीज यहाँ पे भी, जीरो बोलो या रूट बोलो, बोथ आर द सिमिलर। सो फर्स्ट वी हैव टू यूज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब आप देखो तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी फैक्टराइजेशन में हम यूज करेंगे। तो फैक्टर्स हमें निकालना है। फैक्टर्स निकालने की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 into 2 है, कितना है 6 मतलब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम यूज करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमारी क्या है, -5, और 3 into 2 कितना है 6 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। जो भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, ये दो टर्म्स जो भी आए वो टर्म्स कैसी आनी चाहिए, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 into 2 6 होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए 3 into 2 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6, यानी हमारा जो भी बीच वाला टर्म्स आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन भी कितना होना चाहिए, 6। और ये दोनों चीज को हम मिला दे तब उसको 5 होना चाहिए। मतलब इसका 3 और प्लस 2 यानी 3 plus 2 कितना होता है 5। तो ये बीच वाला मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हम उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, लेट अस मूव ऑन इट। सो फर्स्ट वन 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं, ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब हम क्या यूज करेंगे, सपोज 3 into 2 है तो 2x minus 3x ऐसा हम यूज करें तो -2 - 3 कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। तो ये जो मिडिल टर्म हमने यूज किया 2 - 3 -5 हो जाना चाहिए, और -2 और -3 के बीच में मतलब 2 into 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। है 6 यहाँ पे, और 2 into 3 कितना होता है, 6 ही होता है। That's why we put directly here 3 is equal to 0। तो ये स्प्लिट हो गया। अब तो सीधा सा
दो दो की पेयर है उसको कॉमन हम निकालेंगे। यहाँ पे 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचता है x माइनस 1। यहाँ पे हमने 3 को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 बचता है और इज इक्वल टू 0 एज इट इज। सो वी हैव टू यूज कॉमन निकलता है वो x माइनस 1, एक फैक्टर हुआ और दूसरा हुआ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, यानी हमारे पास दो चीज है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया और यहाँ पे देख सकते हैं 2x, 3 को इस साइड ले जाएंगे यानी 3 आया, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। सो 2 रूट्स हमें फाइंड आउट हो गए, एक रूट हुआ हमारा 1 और दूसरा हुआ हमारा 3 बाई 2। सो फाइंड द रूट्स के बारे में हमें यहाँ पे आपको बताया गया था, वो रूट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 बाई 2। सिंपल सा, ये चीज हम कर चुके हैं, मतलब हमें इसमें कोई हार्ड वाली चीज रखती नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके फैक्टर निकालने हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक आपको क्लियर है। जिसको भी अभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इस फैक्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करें, isn't it? So that is also be very easy. So we have to find out 1 and 3 by 2. That is the root. Now we can also verify. कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको आप वेरीफाई करो। वेरीफाई करने की बात आ रही है, तब हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे? तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखो, तो x इज इक्वल टू 1 रखो इसी इक्वेशन में, तो कैसा रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखो तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 कितना होता है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों गया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो दिस इज वन रूट, परफेक्ट रूट इज दैट। मैंने वेरीफाई भी कर दिया, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसी तरह हम x की जगह पे 3/2 रख के भी वेरीफाई कर लेते हैं। यदि वो 0 आ जाता है तो वी कैन से दैट इट इज अ रूट ऑफ बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो ये मैं आपको एग्जांपल्स अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स में भी आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस में भी करना है। सो आई एम ऑल्सो गिवन हियर another homework here, that is example number 4, example number 5। आपके टेक्स्ट बुक का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टेक्स्ट बुक में आप कंसीडर करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, 5 है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको आज सॉल्व करने हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूजिंग द एग्जाम्पल नंबर 6 that is given into the page number 75 and 76 of your textbook। कौन सी पेज? 75 and 76 पेज नंबर, and that is available in your textbook। तो समझ में आ गया which things are included over here। that is for the 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, वो रोमन 3 और 4 आपको करना है। साथ में आज जो हम दूसरी मेथड सीखे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें आपको एग्जाम्पल जो पेज नंबर 75 एंड 76 आपकी टेक्स्ट बुक के 75 एंड 76 है, उसके एग्जाम्पल है वो 4, 5 एंड 6। दैट इज ऑल्सो बी कवर्ड इन टूडेज होमवर्क। समझ में आ गया? तो ये चीज आप याद रखने हैं। और वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। और अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2 की। तो इसमें एक्सरसाइज 4.2 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कितने रोमन है 1, 2, 3 एंड 4।
ओके, ये जो आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया। मैं कल 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करूंगा। समझ में आ गया? सो वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपका आज कितना होमवर्क है मैं बता दूं कितने सम है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 and 4th रॉन्ग। Example, page number 75 and 76 of your textbook. Example number 4, 5 and 6. And exercise 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 4 रोमन है वो चारों 4 रोमन फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। समझ में आ गया? तो इतना होमवर्क आज मैं आपको दे रहा हूं। सो वी रैपिडली गो इनटू द 4.2, क्योंकि 4.2 का कल में क्वेश्चन नंबर 2 लेगा। बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स अभी इस ईयर उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाद में लास्ट में जो भी इसके एग्जांपल्स है वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली व्हाट एवर द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर, मैं आपको बता दूं कि टुमारो वी डिस्कस द एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 का, वो आपको आज होमवर्क में करना है। देन आफ्टर 4.4 जो है आपका, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थी वो अभी इसमें से रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। सो वी हैव टू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। वी हैव टू स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, यानी एग्जाम्पल 14 से हम फिर स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 86। तो ये 4.3 को हम कंसीडर करेंगे, उसके भी 8 क्वेश्चंस तक ही यहाँ पे इंक्लूड है, बाकी 9, 10, 11 है उसमें रिमूव हो गया। नेचर ऑफ रूट्स यानी 4.4 आपका पूरा एक्सरसाइज है, यानी हमें और एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 कल कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे हम, क्योंकि ये भी बड़ा इजी चैप्टर है, दैट्स व्हाई। बट टुडे without failing you have to send this kinds of the homework, isn't it? And do more practice on it, because of on the Saturday on the Friday also having your WRT. So on WRT it will be asked up to the 4.1 and 4.2 4.1 and 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पूरी डिटेल्स, इसमें जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको आज होमवर्क में दिए वो एग्जांपल्स इंक्लूड कर लेना। और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक, यानी 4.1 एंड 4.2 बोथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 तक, 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक इट अवेलेबल इन योर WRT। ओके, सो नेक्स्ट WRT के लिए भी आप पूछेंगे कि क्या सिलेबस है, देन इट विल बी प्रिपेयर्ड। सो इट इज ऑल्सो बी यूजफुल। आज आपका जो होमवर्क आज करेंगे वो कल आपकी WRT में भी यूजफुल रहेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। वी विल मीट वेरी सून इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।